So today we have Ankit. वो बिहार से हैं. He is one of the alums who is very active in terms of governance and working towards the governance system and all that. He's a batch 9 fellow from Surat DTP and उनका इंटरेस्ट काफ़ी रहा है टू अंडरस्टैंड पॉलिसी एंड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू मेक सम रिसर्च अबाउट पॉलिसी एंड मेकिंग इट a hardcore system for people to see, experience, and follow, or to transform. And he has been also recognized by Global Action on Poverty as change maker. His keen interest on foreign policy has made him placed in one of the setup on India-China um, foreign policy talk on between India and China in Chinese embassy in India, and he has been always a motivating factor for the community who keeps on working on the areas of governance and policy. So today's topic is more about understanding that from his point of view and from his experience. Basically, he will be able to make it more concrete rather than me. But yeah, I will request Ankit to just give an introduction about the topic, why we are choosing that topic today to discuss, and how the audience can be benefited with your experience as well as your way of life, and what are the key things that you have learned, you are learning, you are trying to learn, or you are focusing on towards learning them. So I think those are going to be the key areas of our 1 hour discussion. And yeah, over to you, Ankit. Thank you so much. Thanks, Pravas bhai, and thanks everybody for joining today. This is really a very timed initiative because if we see right now, the whole government, in fact, world is quite focused towards how they secure themselves, right? This is the only thing where the whole world, whether it is left or whether it is right, whether it is China or whichever country you take, they are just focused that how do they secure themselves. That's it. So, I mean, it makes sense to understand when the government is also trying hard to ensure that their self-reliance, that self-resilience get to be a part of our life. How do we ensure that we play a part towards that goal? This is not a new thing. Multiple leaders have pitched for self-reliance, self-resilience, Atmanirbharta. These are things which have been the buzzword in the history of India. But looking at the current situation, uh, we have completely, we have witnessed completely different situation, which underlines that the Atmanirbharta, the self-reliance which we tried or which we always fantasized to achieve, have not been achieved. So, what we by contemplated that, you know, uh, I mean, just look at the ecosystem of think tanks, look at the ecosystem of the government, and look at the ecosystem of the civil society. All of them are quite of agreeing that we need to empower the local government, right? That's a unanimous agreement. लेकिन करे कैसे? That's the major question कि करे कैसे? Like when we get into fellowship, we get a opportunity to get exposed to the ground level situation. लेकिन तब भी by structure हम fellowship में अपने जगह पे नहीं होते हैं. हम किसी दूसरे जगह पे होते हैं which is completely alien, and then we get a team, then we get buy-in from the government. When we get the buy-in from the government, we get immunity. हमको एक रिकॉग्निशन मिलता है, और वो रिकॉग्निशन डेफिनेटली वो लोकल सिटीजन से हमको अलग करता है, एंड देन वी इंगेज विद द लोकल गवर्नमेंट. तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट आप लोकल सिटीजन होके इंगेज नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक एक्सटर्नल एलिमेंट हो जो कि गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन के साथ गवर्नमेंट से इंगेज हो रहा है, बगैर गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन के इंगेज नहीं हो रहा है. दैट्स नॉट जनरल. और ये प्रॉब्लम
लंबे समय से चल रहा है। फेलोशिप के दौरान भी एक समय ये आइडिया आया था कि हम डिस्ट्रिक्ट किलर जैसा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। फेलोशिप टीम वाज थिंकिंग ऑफ दैट कि दोज हु आर परफॉर्मिंग रियली वेल in the district transformation program or school leadership development program, they should go back to their districts and villages and try to develop their own region. In fact, this is a wonderful idea. That's a model that they have followed, but we have not so far. We have not been able to. Now, when we are pushing Stand Up India through Startup India, तो कहीं ना कहीं जब हम मतलब मैक्सिमम लोगों से बात होती है तो उन जो भी लोग ऐसे बहुत कठिनतम स्थितियों से निकल के आए हुए हैं उनके अंदर एक वो दर्द रहता है कि यार मुझे ना वापस जाके अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य को ठीक करना है। एंड दैट्स अ वंडरफुल अप्रोच, दैट्स अ वंडरफुल अप्रोच। मतलब आप सोचिए ना, हमारे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, इतने सारे स्कॉलर्स हैं, मेजॉरिटी उनकी कुछ कुछ शहरों में सेंटर्ड है। अगर ऐसा हो कि वो अपने गांव, अपने जिले, अपने शहर के गवर्नेंस सिस्टम के साथ इंगेज होके उनकी इफिशियंसी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा पाए, तो हमारे देश को डेवलप करने में, हमारे देश को वो जो इंटरनल रेजिलियंस अचीव करने की जो अचीव करने की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम हमेशा टर्सियरी बने रहेंगे कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, हम पॉलिसी रिसर्च कर रहे हैं और हम सजेस्ट कर रहे हैं, पर वो एडवाइजरी है, एडवाइजरी है। मतलब आप बाइंडिंग नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को ही नहीं बोल सकते यार इसको करना ही है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। until you be in your own constituency, until you be in your own city or town. So we thought कि हम क्यों ना ऐसा एक डिस्कशन करें जहां पे ये बात हो कि हम कहीं भी रहें, मतलब हम इंडिया के किसी भी जगह पे रहें, हम अपने फिजिकल प्रेजेंस के बगैर भी अपने टाउन, अपने गांव या अपने स्टेट के गवर्नेंस सिस्टम में इंगेज हो पाए। सिर्फ सजेशन नहीं, बल्कि हम उनकी अकाउंटेबिलिटी पे आंख रख पाए। कैन वी बी द वॉच डॉग, कैन वी बी द पर्सन हु कैन enforce the law which is entitled and being surpassed just to ensure that bureaucracy functions on its own comfort. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। मतलब डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के बाद जिस तरीके से पूरी गवर्नमेंट मशीनरी पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, हम लोग डेफिनेटली इस बात को इंश्योर कर सकते हैं दैट वी रिमेन एक्टिवली इंगेज्ड इन द गवर्नेंस ऑफ आवर लोकल यूनिट्स। तो इसी मुद्दे पे, इसी विजन के साथ हमने ये तय किया कि हम एक ऐसा डिस्कशन करते हैं जहां पे हम युवाओं से एंगेज होंगे और उनसे इस बात पे विचार मंथन करेंगे कि कैसे आप मल्टीपल जगहों पे रह के भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम विलेज और टाउन के गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी द एम्बिट ऑफ द होल डिस्कशन। Yeah, Ankit, thanks for sharing that brief. So मेरा सवाल नहीं है, बट एक जस्ट एक थॉट शेयर कर रहा हूँ, शायद आप उसको कवर कर रहे होंगे, नहीं तो या तो टुवर्ड्स द एंड आप थोड़ा सा उसको फोकस कर सकते हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट पॉलिसी 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 एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्सेट्रा। जैसा आपने कहा, सजेस्ट करना आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट स्पेस में हो जाता है। बिल्कुल। What are the opportunities available for the youth to engage with a channel of system जहाँ पे हम पॉलिसी की, जैसे आप एक इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं कि बात भी हो रही है, रिसर्च भी हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक फोकस एरिया भी है। सो हाउ डू वी अप्रोच टुवर्ड्स दोज अपॉर्चुनिटी, अगर उस पर एक थॉट आप रखें, एंड हाउ टू क्रिएट दैट चैनल ऑफ सिस्टम, वो बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज हमें पता है कि मुझे ये करना है, लेकिन मैं कैसे करूँ, शायद मैं कभी कभी उससे भटक जाता हूँ। So I hope your presentation will have a share on this. Yes. So yes, yeah. So my presentation is not more of idea. My presentation is going to completely focus on actions. How do we do the tangible action? That's it. I just opened the chat box and
But what is your take on the draft notification of EIA 2020 that had so many fallacies regarding citizens' participation? Okay. Okay, so if Renika, I think you have asked a question. Can we address it in the later part of the discussion? Is it fine? Yeah, we can. Sure, sure. So, okay, so now, shifting gear towards the major part and main content of the discussion, I just want to understand that from your perspective, from all the participants' perspective, how do you see local institutions? Like, if I ask you a question that when I say that you why don't you engage with the local institutions of governance, what are the major problems that you face? हाय अंकित जी, Hi. मैं बताता हूँ और मैंने अभी बैच 11 में अपनी डीटीपी नीति खंडवा से अपनी फेलोशिप कंप्लीट करी है। जो लोकल इंस्टीट्यूशन के साथ जो इश्यूज मैंने ड्यूरिंग द फेलोशिप बहुत ज़्यादा क्लोजली इसको देखा, ऑब्जर्व किया खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर, कि उनके पास से कम होता है। मतलब वो कुछ अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आज ही, तो वो स्टिल बहुत ज़्यादा डिपेंड है अभी ऊपर पे। मतलब ऊपर का अथॉरिटी कुछ कहेगा तो वो करेंगे, और एक तरीके से बहुत ही रोबोटिक अभी भी उनका वे ऑफ वर्किंग है। मतलब हम कहते हैं कि लोकल इंस्टीट्यूशन है, लोकल जो लोग हैं वो लोग कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा लेते हैं और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन स्टिल अगर टीचर है तो वो भी स्टिल पीआरसी ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन तक ही डिपेंड है। तो वो तो रोबोटिक वे में ही काम कर रहे हैं। स्टिल वो एक लोकल प्रॉब्लम का लोकल सॉल्यूशन देने के लिए खुद पर कितना डिपेंड है, खुद के कितने उनके अधिकार हैं, इसमें वो भी बहुत से ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये थोड़ी सी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन। जी, थैंक यू। ठीक है, completely agree. Okay. So I think I'll just throw more ideas so that you can also think towards the question that I am posing. अगर जैसे यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे जितने लोग भी हैं उनमें से कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं? मैं राजू मिश्रा सीतामढ़ी से गांव से ही बिलोंग करता हूँ। ओके, तो राजू, अगर आपसे मैं पूछूं, आप अपने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, जो पंचायत है या जो ब्लॉक पंचायत है या जिला पंचायत है, उसके साथ इंगेज हो पाते हैं? मतलब एक्सेप्टेंस उनका थोड़ा कम होता है, वो उनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, और हम जो मिलने जाएंगे तो हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है। कुछ रीजन है कि हम सपोज कीजिए कि हम पोषण अभियान को लेकर के उनसे एक सेमिनार या पोषण मेला टाइप का कुछ करवाना चाह रहे हैं गांव में, लेकिन वो कहेंगे इससे मुझे क्या फायदा होगा, है ना। ये हम क्यों करें आपका सपोर्ट, क्योंकि गांव के लोगों को इकट्ठा करना या कुछ बेसिक नीड जो होता है वो सारे उनके द्वारा ही होगा। तो वहां पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम लोग कुछ कॉमन ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि उनका भी नीड भी हो जाए हमारे काम में, और मेरा भी पोषण अभियान का जो ऑब्जेक्टिव वो भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, मतलब कॉमन नीड के आधार पे करते हैं। और ये कॉमन नीड जो है, उनका नीड क्या होता है? पॉलिटिकल नीड होता है या कैसा नीड होता है उनका? आखिर उनकी जरूरत क्या है? उनका 2-3 तरह का, एक तो पॉलिटिकल नीड भी होता है, दूसरा ये होता है कि हमें क्या फायदा होगा फंड से रिलेटेड, कि हाँ इसमें आपका कितना पैसा होगा, आप क्यों करना चाहते, कितना पैसा आपको गवर्नमेंट ने दिया, हमें कुछ आइडिया नहीं है, इस टाइप। अच्छा, तो मतलब बेसिकली उनका जो फंड को लेके कंजर्वेटिव अप्रोच है वो भी उसमें रहता है, नहीं? हाँ, बिल्कुल। ओके। और कोई, अच्छा, और शहर या सिटी या मेट्रोपॉलिटन से अगर कोई एक आदमी बोलना चाहे तो? हाँ अंकित जी, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो मतलब मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मतलब कहाँ पे एक ऑफिस है, कहाँ पे सरपंच, वो तो मतलब लोकल विधायक कहाँ बैठते हैं, और उनसे मिलने भी जाओ तो कुछ उनका मतलब एक, जो मैंने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया तो मुझे एक गांव में ही पंचायत ऑफिस भी दिख रहा है, रोजगार सहायक भी वहीं पर ही है,
थोड़ी सी दूर में मुझे जाके अपना जनपद पंचायत मिल जाता है, तो सब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे डिजाइन रहता है। लेकिन शहरों पे अभी भी इन तरह के इंस्टीट्यूशन तक रीच करना पॉसिबल उतना नहीं लगता। मतलब मैं तो अभी तक नहीं इस चीज को देख पाया। अभी जैसे मुझे एक एजुकेशन का इशू है मेरे साथ, मैं किसी के एजुकेशन के इशू को डील कर रहा हूँ कि उसको टीसी नहीं मिल रही है। अब मुझे उस इशू को भी सॉल्व करवाने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है जैसे सीएसी होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खंडवा डिस्ट्रिक्ट में सीएसी थे, क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे मुझे अभी भी मैं एजुकेशन ऑफिसर सर्च कर रहा हूँ कि कौन है एजुकेशन ऑफिसर जो मुझे बहुत जल्दी यहीं पे मिल जाए, जिससे मैं अपना इशू सॉल्व करा पाऊँ, नहीं तो मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे अभी आउट ऑफ द रीच है मेरे लिए। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक्स। तो आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मिले, एक एग्जाम्पल था गांव का और एक एग्जाम्पल था, मतलब एक एग्जाम्पल था ग्रामीण क्षेत्र का, एक एग्जाम्पल था शहरी क्षेत्र का। इसमें एक जो बहुत स्टार्क डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास इंस्टीट्यूशंस की अवेलेबिलिटी तो है, प्रेजेंस बहुत प्रबल है, बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है, पर शहरी क्षेत्रों में लोकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस का प्रेजेंस उतना नहीं है। और ये प्रेजेंस नहीं होने का एक जो रीजन है वो इसके, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए, अगर जब हम लोकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो जैसे ही हम गवर्नेंस को, जैसे ही हम शासन को स्थानीय बनाने की बात करते हैं ना, वो आइडिया ही डेमोक्रेसी को इंजेक्ट करता है। जैसे ही हम उसको अंदर लाएंगे, डेमोक्रेसी उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डेमोक्रेसी कभी भी सेंट्रलाइज तौर पे चल नहीं सकती, और वैसे भी इंडिया जैसे बड़े देश में तो डेमोक्रेसी सेंट्रलाइज चल ही नहीं सकती है जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है। इस बात का रियलाइजेशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो गया था, और इसीलिए जब लॉर्ड रिपन यहाँ पे आए तो लॉर्ड रिपन का पहला जो रिजोल्यूशन था 1882 में वो यही था कि हम इंडिया में डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस करना चाहते हैं, हम इंडिया के शासकीय व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करना चाहते हैं। और 1882 में पहला वो लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन आया। उसके बाद आपको मालूम है कि जो इंडिया में ब्रिटिश सत्ता की जो पकड़ थी उसका जड़ था बंगाल, तो उन्होंने शुरुआत इस डिसेंट्रलाइजेशन की बंगाल से। बंगाल में पहला एक्ट आया, बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 1884, जहां से म्युनिसिपल एक्ट, सो माइंड दिस वर्ड, म्युनिसिपल एक्ट पहले हम रिकॉग्नाइज किए अपने शहरों को, जो शहरी क्षेत्र थे। उसके बाद 1 साल बाद आया बंगाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1885। उसके बाद अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और म्युनिसिपल एक्ट ये अभी भी एक हायर लेवल पे था, इसको और तोड़ा गया तो क्या हुआ, 1919 में 1919 तो आपको मालूम ही है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद भारत में बहुत आक्रोश था अंग्रेजों के खिलाफ, और उस आक्रोश को उतने ही प्रबल तरीके से डिफ्यूज करने के लिए इस डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को और इंटेंसिफाई किया गया, और वो किया गया बंगाल विलेज सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1990। उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, और वो भारत शासन अधिनियम ही उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 1919 के बाद जो भारत शासन अधिनियम आया, उस अधिनियम में एक प्रोविंशियल लिस्ट डाला गया, जिसके एंट्री नंबर 12 में ये कहा गया कि हम कामों का एक लिस्ट तय करेंगे जो कि लोकल गवर्नमेंट करेगी। और वही लिस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज के डेट में हम उसको 3 भागों में बांट दिए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये व्यवस्था जब हुई, मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम के इस लिस्ट की, कामों का लिस्ट तय हो गया, अभी तो बहुत क्लैरिटी आ गई, लेकिन उसके बाद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या लोकल इंस्टीट्यूशन डिलीवर कर पाएंगे, इतना रिसोर्स क्रंच है, इतनी अशिक्षा है, कैसे हो पाएगा। तो ये एक मेन स्ट्रीम लॉ होने के बावजूद भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बना दिया, मतलब
कि स्टेट के पास जब एप्रोप्रिएट रिसोर्स होगा, स्टेट के पास जब एप्रोप्रिएट स्थिति होगी, तब स्टेट इस इंस्टीट्यूशन को इन्फोर्स करेगा, और आर्टिकल 40 में इसको डाला गया। आपको मालूम है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 35 से शुरू होता है। 40 में ये लिखा गया, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड इनेबल देम with appropriate law so that they may function as local self government। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं तो अपने आप में ये एक सरकार है। अभी जब आप सरकार की बात करते हैं तो उसके पास 3 बेसिक चीज तो होनी ही चाहिए। एक कि उसके पास टेरिटरी होना चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए। दूसरा कि उसके पास फिनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए, और तीसरा कि उसके पास एक लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि शुरू में तो बहुत इंथुजियाज्म था। आप अगर देखें आप भारत के विकास यात्रा को, तो शुरू का जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करप्शन बढ़ता गया और पंचवर्षीय योजनाएं फेल करती गई। उसके बाद बहुत से युद्ध भी हुए, तो 1962 के बाद 65 में भी दोबारा युद्ध, और उसके बाद कंप्लीटली डिरेल हो गई भारत की विकास यात्रा। और इसका सबसे जो जोरदार प्रहार हुआ वो हुआ लोकल गवर्नमेंट्स पर। राजीव गांधी के उस एक जो बहुत फेमस कोटेशन है कि जब मैं 1 रुपये छोड़ता हूं तो मात्र 6 पैसा पहुंचता है, 94 पैसा रास्ते में ही खत्म हो जाता है। 1992 में हमने ये तय किया कि हम स्थानीय संस्थाओं को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देंगे। 1992 में 73वें और 74वें में संविधान संशोधन अधिनियम। अभी उसी अधिनियम के तहत हम वर्तमान स्थानीय संस्थाओं को देखते हैं। आफ्टर the 73rd and 74th amendment of 1992, we got 2 things. Number 1 is that we got legal and constitutional validity for the local institutions, and we also got a written definition of panchayat, village and gram sabha. Now if I ask that how do you identify a gram sabha, what would be the answer? मतलब वहाँ पे जो होने चाहिए तभी वो ग्राम सभा कहलाएगी। लाइक सभी लोग, गांव के लोग अपने इश्यूज को लेकर आए और उसको सुना जाए। मतलब मैंने अपने ड्यूरिंग द फेलोशिप काफी ग्राम सभा अटेंड करी, जहाँ पे सरपंच और उप सरपंच और 2-4 अधिकारी मिलके बैठते हैं और ग्राम सभा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और साइन करते हैं। और इन्फॉर्मेशन जब मैं पूछता हूँ कि आपने गांव में इन्फॉर्म कर दिया था, तो कहते हैं हमने इन्फॉर्म करवा दिया था। मतलब जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि ग्राम सभा होनी है। तो मतलब अभी तक तो मैंने जो ग्राम सभा अटेंड करी ऐसी ही थी। एक मैंने आइडिया भी अटेंड करी थी जहाँ पे वाकई में कम से कम 20 से 25 लोग थे गांव के, तो मैं उसको कंसीडर कर सकता हूँ ग्राम सभा। जी अंकित जी। ओके, थैंक्स। वन मोर फॉलो अप क्वेश्चन, इज ग्राम सभा अ नाउन और ग्राम सभा अ वर्ब? क्या ग्राम सभा एक संज्ञा है या ग्राम सभा एक क्रिया है? एनी आंसर टू दैट? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्रिया में कंफ्यूज हो गए। क्रिया है। I think it has to be a kriya only. एक्चुअली ग्राम सभा एक क्रिया नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हम सभा शब्द को सुनते ही ऐसा लगता है कि मीटिंग हो रही होगी, उसी को हम सभा बोलते हैं। ऐसा नहीं है। ग्राम सभा इज अ नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ स्टैटिक डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। इट इज नॉट सेड कि ग्राम सभा लोग इकट्ठा होके मीटिंग कर रहे हैं तो उसको हम ग्राम सभा बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ग्राम सभा इज अ नाउन and is defined as उस ग्राम पंचायत के डिफाइंड टेरिटरी के वोटर लिस्ट में जो भी लोग हैं, those people constitute ग्राम सभा। Is it clear? Those people who are in the voter list of a defined ग्राम पंचायत constitute a ग्राम सभा। अब वो ग्राम सभा कई बार मिलती है, और वो जो मिलती है उसको हम कहते हैं कि ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है, ग्राम सभा एकत्रित हुई है। ग्राम सभा इज नॉट अ वर्ब, नंबर 1।
अभी जब हम इस बात को देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं तो इसका इम्पैक्ट कहां कहां पड़ेगा। जब ग्राम सभा एक जैसे ही एक नाउन होता है, तुरंत जो पूरा पंचायत का फंक्शन है, दैट इज नाउ supposed to be decided by the ग्राम सभा और in the presence of the ग्राम सभा। अभी जैसे ही ये डिफरेंस समझ में आया कि यार ग्राम सभा जो है वो एक कमिटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि अल्टीमेट सॉवरिन है। ग्राम सभा जो बोलेगी पंचायत में वही होना चाहिए आइडियली। तो एक ये जो डेफिनेशन था, ये हमने 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन से मिला। 73वें से मिला, 74वें से हमें मिला म्युनिसिपैलिटीज का डेफिनेशन। जो अंतर अभी जब हम बात कर रहे थे कि गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रेजेंस में और शहरों के लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रेजेंस में इतना अंतर क्यों है, उसकी दो वजह हैं। नंबर वन कि शहर जो है, शहर हमेशा से एक डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेशन रहा है। आप देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ शहर है, हमेशा शहर किसी ना किसी नदी के किनारे बसा होता है। जो भी शहर, बड़े शहर हैं, वो किसी नदी के किनारे हैं। और ये नदी के किनारे शहर क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि शुरू में, मतलब अगर हम अपने आधुनिक इतिहास में जाएं तो हमारे व्यापार का साधन जो था वो वाटरवे था। हमारे पास एरोप्लेन उतना तो था नहीं और एरोप्लेन अफोर्डेबल नहीं था, इसलिए हमारे पास वाटरवेज थे ट्रेड के लिए। और ट्रेड हमेशा उसी जगह पे होगा जो जहां पे नाव पहुंच सकती है, और इसीलिए जहां जहां नदी है वहां वहां कोई ना कोई शहर बसा हुआ है। तो व्यापार का केंद्र होने की वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज्यादा रही थी, और वो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होने की वजह से हमेशा गांव से लोग निकल के शहरों की तरफ आते थे। शहरों में रहने वाली जनता का जो बड़ा भाग है वो कहीं ना कहीं एक जनरेशन, दो जनरेशन या करंट जनरेशन में वो विस्थापित होके शहरों में आए हुए लोगों की है। और इसी वजह से यहाँ पे जो वोटिंग है, वो जो माइग्रेटेड लोग हैं वो वोट नहीं करते हैं, और वोट नहीं करने की वजह से यहाँ पे बहुत इजी है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो उनसे कटा रहे। इंडिया में अभी भी माइग्रेटेड अर्बन सिटीजन्स की वोटिंग को लेकर डिबेट चल रहा है, अभी हमको कंप्लीटली वो मिला नहीं है। इसी वजह से चूंकि आपके पास वो वोटिंग, आपको वोटर लिस्ट में, याद करो वो ग्राम सभा का जो डिफिनेशन था, म्युनिसिपैलिटी का जो डिफिनेशन था कि आप वोटर लिस्ट में होने चाहिए, आप यहाँ के वोटर लिस्ट में हो ही नहीं, इसलिए आपके पास उतना आवाज नहीं है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट their contemporary situation, first of all I would like to talk about the urban establishment, because there is no too much to talk about it. So I'll just wrap it up in very short. I was just trying to explore that what is the status of urban local bodies. I guarantee there is no record which is available in the public data that these are the people of this city who are in the urban, who are in the metropolitan committee or in the municipal committee, are the chairman of the municipalities. There is no such record available in public data. एक दो स्टेट में, एक दो शहरों का अवेलेबल है, बट जनरली अवेलेबल नहीं है। द पॉपुलेशन विच लिव्स इन सिटीज इज majorly focused towards their work. You know, the migrants who have come from different villages, different towns to different cities, they are not being recognized as a legitimate voter, और उसके वजह से ये ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है आपका जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, जो म्युनिसिपैलिटी है, वो इतना सीरियस नहीं है इस चीज को लेके। दिस नीड्स अ सीरियस डिबेट, दिस नीड्स अ फोकस्ड एक्शन, फोकस्ड debate, focused demand by the citizen towards the government कि भाई लोकल इंस्टीट्यूशन को, जो अर्बन लोकल इंस्टीट्यूशन है, उसको आप एक्टिव करो, उसको पुश करो कि वो लोगों का बात जाने, और इसके लिए हमको इसके तरफ एफर्ट लगाना पड़ेगा। Now I shift towards the rural local bodies. That's the interesting thing, because
there it's so much happening towards local bodies. अगर okay, so one basic question, जो रूरल लोकल बॉडीज है उसके बारे में क्या आपको मालूम है कि इंडिया में 2.5 लाख जो पंचायत हैं उन सब के बारे में डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है. डू यू नो दैट? नो 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 नो. ओके, so I think it is consistently there is no, but let me tell you a website which has oh, Ekta, yes, Ekta, can you share this miraculous information? आई गेस मतलब जो इन्फॉर्मेशन है आपने बोला पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, क्योंकि आधार कार्ड जो हम यूज करते हैं दैट इज लिंक्ड विद द गवर्नमेंट सिस्टम, सो इट इज वेरी अपरेंट कि हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अप्रोचेबल है. दैट इज व्हाई आई सेड यस. आपकी इंफॉर्मेशन तो अप्रोचेबल है ही है, आपके बारे में तो हर डेटा है गवर्नमेंट के पास. मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायतों के बारे में, इंडिया में 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, 2,60,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, क्या उनके बारे में डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है? हाँ मतलब होगा ही, क्योंकि पूरा जो ये बनता है, बजट बनता है ग्राम पंचायत में, वो पूरा डेटा के बेसिस पे ही बनता है, और वो डेटा पूरा जाता ही है कि इतनी पॉपुलेशन है या यहाँ यहाँ इनको ऐसी नीड है, तो इसलिए वो कनेक्ट करके मैंने बोला माइट बी रॉन्ग. No, so you are not eventually wrong, you are eventually right. There is data available for each and every village, which is almost 6 lakh villages in India, और वो डेटा आपको मिल सकता है मिशन अंत्योदया के वेबसाइट पे. तो अगर हम किसी एक पंचायत के बारे में बात करें, किसी एक पंचायत के स्थिति के बारे में बात करें, तो उसके बारे में 3 चीजें जरूरी होता है जानना. नंबर 1 कि वो पंचायत एस्टैब्लिश्ड कहाँ है, क्या उसका लेजिटिमेट, उसका वेरीफाइड मैप अवेलेबल है, नंबर 1. नंबर 2 कि क्या उसके रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. Resources means natural resources, financial resources and human resources. 3 types of resources. उसके बाद क्या उस पंचायत में जो गैप्स हैं वो अवेलेबल है? डेफिनेटली. ये तीनों चीजें मिशन अंत्योदया जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलके तैयार किया है, इस वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो जब आप किसी एक पंचायत के बारे में ये जानते हो कि वहां पे उसकी स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पे स्थित है, वेयर इट इज लोकेटेड एग्जैक्टली, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज पॉकेट्स, व्हाट आर द पॉकेट्स वेयर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, what are the natural resources, what are the occupation, what is the human resource, what kind of demography is there, and then what are the gaps that are in the villages. If we keep something like all the basic habitation facilities as the standard, then what are the facilities available. और अगर आप मिशन अंत्योदया के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको हर एक विलेज का ये डेटा, तीनों चीज मिल सकता है कि वहां पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके बाद वहां पे रिसोर्सेस कौन कौन से अवेलेबल हैं, और उसके बाद वहां पे गैप्स कौन कौन से हैं. सो अगर हम अपने एंगेजमेंट की बात करते हैं, डेफिनेटली हम इन चीजों को जानेंगे कि वहां पे क्या गैप है और वहां पे क्या रिसोर्सेस है, तभी हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि यार जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करके हम इस गैप को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं. That's the key where we come into the picture. तो जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो जब आपको ये मालूम है कि रिसोर्सेज कहाँ हैं और आपको ये मालूम है कि गैप्स कहाँ हैं, आप वहां अपनी इंटेलिजेंस इंजेक्ट कर सकते हैं. अभी क्वेश्चन ये आएगा कि यार मालूम तो हो जाएगा, पर हम कैसे इंगेज होंगे. देखिए, जब भी ग्राम पंचायत के बारे में बात होती है तो उसका
उसके विकास का एक चक्र है, एक साइकिल है उसके डेवलपमेंट का। 2 अक्टूबर of every year is the date when each panchayat starts its development planning. ठीक है, तो सेकेंड पंचायत से ग्राम सभाएं होना शुरू हो जाती हैं, ग्राम सभा मिलना शुरू कर देती है देश के हर पंचायत में। उसके बाद क्या होता है कि एक राउंड ऑफ ग्राम पंचायत होता है, उसके वार्ड सभाएं होती हैं, वार्ड सभा के बाद ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम सभा होती है, और उसके बाद ग्राम सभा में ये बात डिस्कस होती है कि हम इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से काम करेंगे, और वो ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो प्लान की तैयारी वहां से शुरू होती है, और उसके बाद नवंबर एंड तक एक जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है, और फिर वो ब्लॉक पंचायत को भेजा जाता है। फिर ब्लॉक पंचायत अपने ब्लॉक के एरिया में जितने ग्राम पंचायत होती हैं उन सबके डेवलपमेंट प्लान को कोलेट करके डिस्ट्रिक्ट को भेजता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं उन सब का डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक के डेवलपमेंट प्लान, और जो अर्बन बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज है, उनके अंडर जो वार्ड होते हैं, उन वार्ड सभाओं से जो निकल के आती हैं, वो सारे प्लान्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोलेट किए जाते हैं, और उसके बाद ये सारे प्लान्स स्टेट लेवल पे भेजे जाते हैं। ये जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब इनका डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस चल रहा होता है तब आप इनके साथ हैं कि नहीं, तब आप इन पर नजर रख रहे हैं कि नहीं, तब आप इनको आइडिया दे पा रहे हैं कि नहीं। सबसे जरूरी ये हो जाता है। अभी आपको कैसे मालूम चलेगा कि कब प्लानिंग हो रही है, कब होने वाली है ग्राम पंचायत, और कब ये लोग प्लान बनाने वाले हैं? आपको ये सारा डेटा मिशन अंत्योदय वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहां पे प्रॉपरली कैलेंडर बना हुआ है कि किस ग्राम पंचायत में कितने तारीख को ग्राम सभा होने वाली है, जीपीडीपी बनने वाला है। जीपीडीपी इन्होंने बनाया क्या है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके तहत MGNREGS, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई जाती है, और MGNREGS ये प्रॉमिस करता है कि वो हर इंसान को 100 दिन का, कम से कम 100 दिन का काम देगा। अभी आप ये सोचिए कि जो MGNREGS है वो अगर 100 दिन का काम दे रहा है, तो आखिर वो क्या काम करते हैं लोग? कैसे मालूम चलेगा कि ये इंसान 100 दिन काम किया? कैसे मालूम चलेगा कि ये इंसान जो 100 दिन में काम किया, ये इतने 5 लोगों का ग्रुप ने 100 दिन का काम किया, तो क्या काम हुआ? कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको एक चीज समझना होगा। आप मिशन अंत्योदय के साथ साथ एक चीज और एक्सप्लोर करिएगा, उसको बोलते हैं पंचायत एंटरप्राइज सूट। पंचायत एंटरप्राइज सूट में क्या होता है कि मान लो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में हमने ये कहा कि हम इस ग्राम पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाएंगे, ठीक है? तो उस आंगनबाड़ी केंद्र को हम मनरेगा के तहत बनवाएंगे। तो होता क्या है कि आपके ट्रैकिंग के लिए पहले तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में वो लिख के जाता है कि यार ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर मनरेगा स्कीम के तहत ये आंगनबाड़ी बनाना है, जिसमें इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है? ये पहले हमने लिख के दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जाता है प्लान सॉफ्ट नाम का एक, आप पीएस जब एक्सप्लोर करेंगे पंचायत एंटरप्राइज सूट, तो उसमें आपको पीएस में आपको प्लान प्लस नाम से एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। वो प्लान प्लस पब्लिकली अवेलेबल है। तो प्लान प्लस में आप देख पाएंगे कि इस ग्राम पंचायत में ये चीज इस साल के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद तो प्लान में तो वेरीफाई हो गया, उसके हिसाब से लोकेशन भी हो गया, पैसा आ गया। अभी जब काम शुरू हो जाएगा तो आप उसका लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, हर वीक उसको अपडेट किया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है प्लान प्लस हो गया पहले, उसके बाद अब एक्शन सॉफ्ट।
प्लान प्लस, फिर एक्शन सॉफ्ट। एक्शन सॉफ्ट में आप देखते हो कि इनके पास इनका डेवलपमेंट कैसा है, काम कैसा चल रहा है, बना कि नहीं बना, कितना बना। और एक्शन सॉफ्ट के बाद फिर होता है नेशनल एसेट्स डायरेक्टरी। जब वो एक्शन हो गया उसके बाद वो एक जो एसेट क्रिएट हुआ, एसेट, वो एसेट आपको नेशनल एसेट्स डायरेक्टरी में मिलती है। MGNREGS का मेन मकसद ये है कि वो गांव में उनके बेसिक हैबिटेशन के लिए एसेट्स क्रिएट करे, मतलब रोड बनाए, उनके लिए कम्युनिटी हॉल बनाए, उनके लिए जो लोकल पशुओं के देखभाल के लिए अगर कोई शेड बनाना है तो वो शेड बनाए। ये सारे चीजों को, जो भी एसेट जरूरी है, अगर मीटिंग के लिए एक चबूतरा बनाना है तो वो चबूतरा बनाए। इसीलिए उसको लोकल एम्प्लॉयमेंट स्कीम बोला जाता है, ताकि वो जो भी काम करे उससे एसेट जनरेट हो, उससे एक धरोहर जनरेट हो। तो एकदम सिंपल एग्जांपल है, पहले प्लान प्लस में प्लान अपलोड करो, फिर एलोकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद उस एलोकेशन के हिसाब से एक्शन करो। दैट एक्शन कैन बी ट्रेस्ड इन एक्शन सॉफ्ट, and once the action is completed, it has to be registered in the National Assets Directory, where you can verify whether the allocation has been utilized in the proper direction or not. Because we have witnessed in a whole age that things have been built only in papers and not in reality. So in this National Assets Directory, the asset is tagged with their geolocation. अभी इतना जब क्लैरिटी आ जाता है, अभी यहाँ पे एक ही चीज की जरूरत होती है, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको दिखेगा, और जब आपको दिखेगा तो आप एक्शन लोगे, और तब लोकल इंस्टीट्यूशन जो है वो अकाउंटेबल होंगे। एंड दैट्स व्हाई इट इज इनएविटेबल दैट इफ वी वांट द लोकल इंस्टीट्यूशंस टू फंक्शन, वी हैव टू पार्टिसिपेट। नाउ इट इज नॉट अ टफ जॉब, because the Digital India has made it possible to investigate by sitting in any corner of the country about any panchayat. So that's the basic thing. I think I have made the case clear. If you want to ask question, I would love to answer them. But before that, before I take questions, I have a question already from Ekta. I have a question that you said Gram Sabha is Sangya, but I am confused, rather than Gram Panchayat is Sangya and Gram Sabha is Kriya. No, Gram Panchayat is also a Sangya and Gram Sabha is also a Sangya. Gram Panchayat consists of the whole establishment where the vital parts are the elected representatives of the village Panchayat. Gram Panchayat is a whole institution where Gram Sabha is a part of Gram Panchayat. Elected representatives are, in fact, elected representatives are part of Gram Sabha as well, right? अगर तुम उस गांव के वोटर लिस्ट में नहीं होगे तो वहां के इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, right? That's the basic thing. So all the elected representatives are part of Gram Sabha. They are elected representatives, have been given extra responsibility because they are mandated with the belief and faith of the electorates. So they constitute a different part of the Gram Panchayat, which is the administrative and decisive part. They are representative. So Gram Panchayat is a Sangya, Gram Sabha is also a Sangya. When Gram Sabha meets, it is called Gram Sabha meeting, and that is a Kriya. Is it clear, Ekta? Sorry. मुझे कंफ्यूजन मतलब ऐसा है कि आपने बोला कि ग्राम सभा, मतलब मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है ग्राम सभा का वो ये है कि ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जो कि साल के 3 ओकेजन्स पे होती है। एक रिपब्लिक डे, एक 26 जनवरी वही रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। तो दैट इज फॉर अ पर्पस कि ये कोई पर्पस है या हर साल होनी ही होती है जहाँ पे 100 लोग एटलीस्ट होने होते हैं, जमा होते हैं। तो क्रिया इसलिए क्योंकि वो मीटिंग है जो कि दैट इज लीड बाय सम इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव जो आपने बोला ग्राम पंचायत के। तो दैट इज व्हाई आई एम कंसीडरिंग इट एज अ क्रिया एंड नॉट संज्ञा।
So there is no room for your consideration or my consideration. It is exclusively defined in the Constitution of India, and it says that Gram Sabha is a list of people who are in the electoral list of the defined Gram Panchayat territory. So there is no point of consideration. It is exclusively defined in the Constitution. You can see in the Constitution of India. If यहाँ पे photo upload करने का option है क्या? Okay, so I'll give me a second. I am uploading a photograph so that it becomes clear right here, right now. Okay. Hello. Yes, go ahead. Yeah. Ankit, it was really nice to hear a lot of new information from you. Thanks. And also, if you want to participate in our local institution development plan, like those things, anyway, we have to be in our village. We have to be present in our village physically. Is there any scope for us to virtually can enable and influence those plans? Yeah, go ahead. Yeah, this is my question. How can we engage in our local governance in our homeland, despite not being in physically there? Cool. That's really a nice question. Just to add to that question, Ankit. Sure. I used to work with Basics India 7 years back. I had a working experience with them in the coastal belt of Odisha. One thing, because I used to work with the women segment and into their livelihood, so we used to have many meetings with these gram panchayats and SSGs, etc., etc. So whenever we had to approach the gram panchayat or something like that, there was always a set of tone. Please reach out to these senior people working in the system, and whatever they says, this is going to be implemented here. So how does that gram sabha or how does that gram panchayat is an important factor of our village system that influence development aspects of the villages. So Sure. how do you respond to that? Yeah. So there are two ways of engagement, and there are two perspectives of engagement that has come from two different persons. One from Prabhas Bhai and one from, I guess, Adi Ganesan, right? If I'm not wrong. So number one is online. Number two is physically present. Now, when I talk about the online participation, so see, there are two things. I mean, do you want to fix their accountability? Do you want your your part in fixing their accountability, or do you want to gain the mileage? You have to make a decision. If you want to make their accountability primary thing, you have multiple ways. Number one is that you can write to them. Number one, you can write to them. मेल कर सकते हैं उनको, या फिर if you are interested in something which should be there in the Gram Panchayat development plan, you can suggest your idea in the writing. And the interesting part is we generally get demotivated when we write something to the government and it doesn't get honored or it doesn't get heard. लोग उसको incorporate नहीं करते हैं. आपको incorporate कराना पड़ेगा. That's a clear thing. इसमें कोई भी रिक्वेस्ट और किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है. आप सीधा उसमें एक काम करो. आपके पास आरटीआई ऑनलाइन है. आप उस लेटर को स्कैन करके उस आरटीआई ऑनलाइन में इंक्लूड करो और आप सीधा लिखो कि इस तारीख को ये लेटर लेके गया था, इसके बारे में हमको आप 2 सूचना दीजिए. नंबर 1 कि इस पे क्या क्या एक्शन हुए. डेफिनेटली देयर इज नो एक्शन, राइट. Number 2, if there is no action, why? Then
they are forced to respond to the letter why they have not responded, right? So that's the way you enforce, because here this is a power struggle. You cannot be very passive. पावर स्ट्रगल है, कंट्रोल कोई भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है. इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल, इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, then you have to be legally correct and using the tool which is binding on them. RTI is binding on them, right? So that's a way how you interpret, how you utilize these tools to influence the decision. Number 2 is you can make a good relation with the panchayat and then you can influence. आप अगर ऐसा हो सकता है, that will be ideal case कि आप उनको बोलो, because they are empowered with a system, with a legal provision जहां पे वो अपने पंचायत के विकास के लिए एक स्पेशल कमिटी गठित कर सकते हैं. That is written in the constitution. They have been provided with that power कि मुखिया चाहे, ग्राम सरपंच चाहे तो एक स्पेशल कमिटी ऐसा कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है which will function as advisory, which will function as a consultancy firm. तो अगर आप ऐसा रिलेशन डेवलप कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन. दैट विल बी अ पॉजिटिव नोट, दैट विल बी मोर कॉर्डियल, in comparison to the RTI thing. That is the ultimate solution. And the second thing which Prabhas bhai said कि जो मतलब लोकल जो नेक्सस है उसमें हम कैसे इंटरप्रेट करें. हमारे देश में एक विधायक का चुनाव एक लोकसभा का चुनाव लड़ने से ज्यादा खतरनाक होता है पंचायत का चुनाव लड़ना. क्यों? क्योंकि लोकसभा में आपके पास समर्थक बहुत हैं और आपके पास दुश्मन बहुत हैं. कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस हो जाता है. वहां पे पर्सनल अटैक आप पे बातों से होता है, फिजिकल पर्सनल अटैक बहुत. वाई? बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर, राइट? बट इन पंचायत इट इज वेरी पर्सनल. वो मतलब सबको मालूम है आपके बारे में, आपकी औकात क्या है सबको, क्योंकि डेली लाइफ है ना, सब चीज एक्सपोज्ड है ऑलरेडी. सो यू कैन नॉट प्ले सम ट्रम्प कार्ड, समथिंग लाइक दैट which can surprise them. So they are already prepared. तो ऐसे कंडीशन में जो लोकल नेक्सस होता है, जो इन्फ्लुएंशियल होता है, या तो वो रूलिंग साइड का होता है या एंटी साइड का होता है जो पिछले साल रूल किया. अभी उस नेक्सस के साथ कोर्डियल रिलेशन बनाना ही हमारे पास एक वो होता है, हमारे पास एक चारा होता है. दूसरा चारा ये हो सकता है कि हम लोकल ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ इंगेज करके, अपने साथ मतलब अपने पाले में रख के तब हम काम करें. These are the two ways how we can engage. Number 3 is you can definitely play the RTI card there also, because whichever work that you are trying to do, that is definitely legal, that the panchayat is supposed to do and they are not doing. So you can definitely take a name, because RTI में कोई वो RTI ऑनलाइन में आपसे UID और ये सब कुछ नहीं मांगा रहता है. हम कई नामों से RTI फाइल कर चुके हैं. So it doesn't make sense. You can use any name, you can use any address. कोई पान वाले का एड्रेस दे दिया, वहां पे पोस्टमैन डिलीवर करते रहता है RTI का वो जो जवाब है, because you have to maintain your security as well. तो ये जो एक जो फैसिलिटी है to not reveal your original identity and yet having access to the critical information, हम उस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं और तब हम इनको इन्फोर्स कर सकते हैं that they do what is required. RTI online has absolutely mobilized, the whole RTI community, those who are really interested in the accountability, fixing the accountability of the governance. Wow, that's great. All right, do we have any more questions coming up? Yeah. Hello Ankit. Yes. It's Vatan here. तो आपने जैसे कहा, मतलब मैं थोड़ा सा ग्राम सभा को स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस को थोड़ा और जानना चाहता हूँ. लाइक जैसे आपने कहा कि लोग अगर वहां पे जाने लगेंगे तो समझेंगे चीजों को, और समझेंगे तो फिर वो और स्ट्रेंथन होगा और
लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, ऑब्जर्वेशन रहा ग्राम सभा को लेकर, तो मतलब कि जब मैंने ग्राम सभा की बॉडी में जो सचिव होते हैं, सरपंच होते हैं, उनसे पूछा कि लोग क्यों नहीं आते हैं, तो उनका ये कहना था कि सर ये लोग जो बहुत ही ज्यादा लैंडलेस लेबर हैं, ये लोगों का एक दिन का दिहाड़ी आना, तो यहाँ आना और बैठना, बातों को सुनना, जानने के लिए, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, मतलब वहां तक जाने के लिए भी उसके लिए वो एक दिन का दिहाड़ी मिस करके आएंगे। लेकिन सेकंड ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जब कोई गवर्नमेंट स्कीम बढ़ रही होती है तब वो लोग वहां पे बहुत ज्यादा नंबर पे पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा, जैसे कि, तो ये ऑब्जर्वेशन है कि जब कोई स्कीम बढ़ रही होती है तब लोग पहुंच जाते हैं अपने अधिकारों के लिए, लेकिन जब ऐसे नॉर्मल टाइम पे अगर बुलाते हैं तो लोगों की दिहाड़ी, मतलब दोनों तरफ से ही चीजें हैं इश्यूज, तो ऐसी सिचुएशन में क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्कीम्स जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे तो लोग आते ही हैं, बिना स्कीम के भी लोग पहुंचते वहां पे जानने के लिए। ओके, थैंक यू। That's a wonderful question. Loved it. Absolutely loved it. पर एकदम बेकार बहाना है कि लोग एक दिन का दिहाड़ी लूज करने के डर से उसमें आते नहीं है। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्राम सभा कितने देर का करते हो? एक दिन भर का तो नहीं होता है ना, 3 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, राइट? और उसके बाद भी जब आप ग्राम सभा के पहले वार्ड सभा कर रहे हो तो वार्ड सभा में तो छोटा ग्रुप है, वहां तो आपको पर्सनल प्रॉब्लम मालूम हो जाती है, ठीक है? और जब ग्राम सभा आप कर रहे हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है जहां पे सब लोग उस ग्राम पंचायत में ही रह रहे हैं, गांव के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब उसी गांव के हैं, उस गांव के जो सिटीजन है वो सब उसी गांव में है, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि ग्राम सभा जो है उसकी मीटिंग शाम को बुलाई जाए? क्या ऐसा संभव नहीं है कि ग्राम सभा की मीटिंग सुबह बुलाई जाए? यह डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हो कि मतलब ग्राम सभा में लोग आए। What I have observed almost all major parts of the country, north, east, south, west. मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है ग्राम सभा बुलाने से सबसे ज्यादा डरती है अगर ग्राम पंचायत, तो इस वजह से डरती है कि वहां पे उनको डिबेट करने में डर लगता है। वहां पे जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज पेंडिंग हैं उस पे लोग क्वेश्चन करते हैं और उस पे बहुत हॉट डिबेट होता है, वहां से दुश्मनी के बढ़ने के चांसेस भी होते हैं, और इसलिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने से डरती है। दूसरा रीजन, आई हैव प्रैक्टिकली विटनेस्ड a सरपंच who tried to organize ग्राम पंचायत मीटिंग। 3 बार बेचारा ग्राम पंचायत का मीटिंग बुलाया, कोई डिसीजन हुआ ही नहीं। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला कि अरे सरपंच जी आप छोड़िए ये ग्राम पंचायत का मीटिंग, 20-25 जो 5% का कोरम होता है कि एटलीस्ट 5% लोग होने चाहिए, तो आप प्लान को वेरीफाई कर सकते हो। जो 20-25 लोग जो हैं उनको इकट्ठा करके 5% का कोरम करिए और आप अपने प्लान को सर्टिफाई कर दीजिए। So the basic problem is not people's interest. The basic problem is how the panchayat is handling the situation. जब आप करप्शन बहुत दिन से करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका जो एक जो एंगर है, लोगों के बीच में जो एंगर है वो निकल के आएगा, और वो एंगर को मिटिगेट करने का कैपेसिटी अगर आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर वो कंपैशन नहीं है, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स द ट्रिकी थिंग। That's where you need appropriate effort which should be visible. मतलब ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है, किसी को मालूम नहीं है, इंसान को कल सुबह होने वाला है, आज रात को बताओगे तो गुस्सा तो आएगा ना उसको। Why not to make 200 रुपए का एक मनरेगा वर्कर हायर कर लो और रिक्शा पे बोलो उसको कि वो 5 दिन पहले से अनाउंसमेंट करना शुरू करे, कोई गुस्सा नहीं होगा। So it basically, recently I interviewed a Gram Panchayat Sarpanch who have been awarded by multiple national awards by the president, vice president and prime minister as well. उससे मैंने पूछा कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभाएं होती हैं उसमें
जो एक कॉर्डियल रिलेशन नहीं है। तो उसने कहा अंकित जी देखिए, बेसिकली हमारी नियत पे डिपेंड करता है, क्या हम वाकई ग्राम सभा में सेवा करना चाहते हैं। अगर ग्राम पंचायत में हम ग्राम सभा की मीटिंग बुला के सेवा भाव एस्टेब्लिश कर पाए, गुस्सा कोई नहीं करेगा। थैंक यू अंकित जी। Aman, if your internet is working good, you can please ask question. Yeah. अंकित जी, लाइक जब भी ग्राम सभा में गया हूँ, भले पंचायत से या फिर सेक्रेटरी से बात की, वो हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये फंड्स का फंडा समझा दीजिए आप मुझे कि कहाँ से किस डिपार्टमेंट से फंड मिल पाता है ग्राम पंचायत को, तो हम कैसे एज आउटसाइडर उसको देख सकते हैं कि वो कैसे इफेक्टिवली कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। Definitely, absolutely wonderful question and a very decisive question. Number one, do you remember the definition which says that Gram Panchayat or the urban bodies, they are local self-government? यार एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपना फंड सोर्स ना हो तो क्या वो गवर्नमेंट के रूप में फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू नीड टू हैव योर इकोनॉमिक कॉर्पस, राइट? पंचायतों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। दे डोंट रेज मनी, दे ऑलवेज रिमेन पैरासाइट। अभी आप सोचो कि हम जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या किसी भी तरह की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम सबसे पहला चीज क्या देखते हैं? फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। अभी हमारे पंचायतों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू पुश दैट एजेंडा कि आत्मनिर्भर भारत में हम रूरल इंटरप्राइज MSME को बढ़ा सकते हैं क्या, सो दैट पंचायत गेट्स इन अ सिचुएशन वेयर दे कैन रेज मनी फॉर देमसेल्व्स, राइट? तो जब फंड की बात आती है तो आप देखो, अगर आपको फंड के बारे में जानकारी सिर्फ चाहिए, दो प्लेटफॉर्म है, gpdp.nic.in, आपको वहां पे पूरा फंड का डिटेल मिल जाएगा कि किस पंचायत में कौन सा काम कितने पैसे में हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन डाउनलोड करके किसी भी पंचायत में कोई भी काम हो रहा है, उसमें कितना फाइनेंशियल एलोकेशन है, वो सब आपको अवेलेबल। डू यू रिमेंबर द चैनल प्लान प्लस में पैसा आया, फिर एक्शन लेना है, एक्शन सॉफ्ट में एक्शन होना हो गया, फिर उसके बाद नेशनल एसेट डायरेक्टरी क्या बना। तो यहां पे जो फिजिकल काम हो रहा है उसमें पैसा किस तरीके से जा रहा है वो हमको मालूम चलेगा। ई ग्राम स्वराज में कहां पे कितना पैसा जा रहा है और किस एलोकेशन कौन उसका बेनिफिशियरी है, हर चीज का डिटेल अवेलेबल। जस्ट टैप दिस रिसोर्सेज, मिशन अंत्योदया, GPDP, पंचायत इंटरप्राइज सूट। अगर ये तीन चीज को आप एक्सप्लोर कर पाए, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज the financial distribution, what is the financial devolution in each and every panchayat. You can completely understand that. Number 2, कि ये बहुत जरूरी है कि हम पंचायतों में रूरल लोकल बॉडीज की इंडिविजुअल, मतलब उनकी अपनी फाइनेंशियल सोर्सेज, जिनको ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है, ओन सोर्स ऑफ OSR कहा जाता है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, OSR बढ़ा पाए। ये OSR बढ़ाने में ना हम जैसे युवाओं का बहुत भूमिका हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि OSR तब तक नहीं बढ़ेगा यार। देखो, बहुत ये एक रियलिटी है कि गांव में जो लोग अभी रह रहे हैं, हम उसके लगभग 80% जनता से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करे और वो मतलब वो वहां पे इंडस्ट्रीज बनाए और एंटरप्राइज चलाए। दैट इज नॉट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोग्राफी दैट इज लिविंग देयर राइट नाउ। बट those people like us who have their roots in villages, who want to live in villages, they can definitely start their own enterprise with the cooperation with the panchayats. इसके लिए युवाओं को definitely engage होना पड़ेगा, वहां पे enterprise लगाना पड़ेगा, और तब जाके हम इसको एक जो local unit which should be independent both in making the policy and funding those policies, ये जो ड्रीम है वो स्टैब्लिश हो पाएगा। सो दिस इज वेयर आवर रोल कम्स इन। अंकित, हेलो। यस, कैन यू प्लीज elaborate local enterprise in villages? Yes.
somewhat in which in terms of, are you meaning that are you saying some business should be started according to the need of the village? What do you mean? Can you please elaborate it? So I'll just give you a simple example. So after the enactment of this 73rd and 74th Amendment in 1992, after 2010, the government thought that why not, when this SHG thing happened, कि भाई हम गांव में सोशल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, वो लोग लोन बना के और लोकल इंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे. तो उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि जब ये इंटरप्राइज बढ़ रहे हैं तो इनके फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को हैंडल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा. एंड दैट फोर्स द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है. सो दैट थिंग एंड मोहम्मद यूनुस जो इन्वेंशन हुआ वहां पे बांग्लादेश में एक जो प्रैक्टिस हुआ कि हम कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स बना सकते हैं क्या, ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया, ये दोनों मर्ज हुआ और इस तरीके से हमारे पास रूरल कोऑपरेटिव्स बने. ऑल्दो उसके बाद उसका बहुत पॉलिटिसाइजेशन हुआ और करप्शन का हब बन गया, वो अलग बात है, बट दैट इज अगेन गोइंग टू बी रिफॉर्म्ड. नाउ द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट, सो इट विल कम इन अ ईयर दैट विल बी रिफॉर्म्ड. सो जब हम रूरल इंटरप्राइज की बात करते हैं, there are two challenges that we face. Number one is we don't understand what are the resources available. Now, through the Mission Antodaya website, you can exclusively get those information available in your inbox, that what are the resources available, how is the demography looking, what are the major occupation, and that is a very critical information to establish or plan your own enterprise. Number one, availability of the information about resources and occupation. Number two is गांव का जमीन सर्वेड नहीं होता है, और सर्वेड नहीं होने की वजह से आप जब ये कोशिश करते हो कि हम वहां पे अपना इंटरप्राइज एस्टैब्लिश करेंगे, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू एस्टैब्लिश दैट. सो इवन इफ द पर्सन इज लिविंग एंड दे डोंट हैव लीगल पेपर्स of their property, they are living there just because their traditional rights, right? They are living there for generations. ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि हम अगर एक रेंटल अग्रीमेंट बना लें, that rental agreement empowers any person to establish their enterprise in rural areas. That is a temporary solution to this problem. हालांकि इस बार पंचायती राज डे पर गवर्नमेंट ने इसीलिए अनाउंस किया ई स्वामित्व ग्राम पंचायत स्वामित्व योजना में अभी रिमोट वो ड्रोन मैपिंग हो रहा है, सो दैट वी कैन हैव रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द विलेज लैंड अबाउट देयर प्रॉपर्टी राइट्स. तो एक बार जब वो हो जाएगा, 3-4 साल समय लगेगा यार, इट्स अ ट्रिकी थिंग. सो वंस दैट इज डन, we can definitely have any land viable to have the official address of any enterprise. That will revolutionize the whole Startup India and MSME thing. So when it comes to establishing your enterprise in rural areas, the shortcut right now is avail the information from the Mission Antodaya website about resources available, avail a rental agreement, and go ahead. Does it answer to your question? Yeah, it's useful, really. Thanks. Thanks. Yeah, Ankit, it seems to be a beautiful way of presenting your thoughts and experiences. It has been a very creative insightful session. I was just thinking back of the mind now, should we also keep one more session on this? How do we create some practices around that? You must have some ground level experiences working with various partners, organizations, etc. So we can think about that in coming months, so that we get to hear you more. Okay, I think there are no more questions. We should call it a day now. And thank you everyone for joining in this interactive session and getting to hear Ankit. And Ankit, as well as thanks to you for giving your time and orienting us